عید پر پوری 6 چھٹیاں، سرکاری محکمے 22 سے 27 مئی تک بند رہیں گے۔ وفاق کی حکومت نے اعلان کر دیا، وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں بھی ملازمین کی موجیں، پورا ہفتہ چھٹیاں ہوں گی۔ 23 سے 31 تک تعطیلات کے دوران ٹرانسپورٹ اور پارک بند رکھنے کی بھی تجویز۔ پنجاب میں انٹرسٹی بس سروس پیر سے چالو، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے 20% کم کرنے کی منظوری۔ صوبے میں پاور لومز، شاپنگ مالز، آٹو اور موبائل فون انڈسٹری بھی پیر سے کھولنے کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ عثمان بستار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، فیاض الحسن چوہان کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پیر سے SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت۔ سیلونز اور حجام کی دکانیں بھی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کام کر سکیں گی۔ 24 کروڑ ہی لگا لیں، عید کی سواری سے پہلے ٹکٹیں خرید لی ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں آج اور کل میں یا سوار تک بتا دیا جائے، ورنہ ہم بغیر کسی پیسے کاٹنے کے 15 دن کے اندر یہ 24 کروڑ روپیہ لوگوں کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ عید بکنگ پردیسیوں نے 24 کروڑ کے ٹکٹ خرید لیے، ٹرینیں چلانے کی اجازت دی جائے۔ پیر تک آپریشن شروع نہ ہوا تو نقصان ہوگا، وزیر ریلوے نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اسٹاف کے کرونا ٹیسٹ، 4 ارکان کے رزلٹ مثبت، قرنطینہ کر دیا گیا۔ SOPs پر عمل جاری۔ متاثرین میں سے کوئی بھی براہ راست کسی اہم شخصیت کے ساتھ منسلک نہیں تھا، شہباز گل کی تصدیق۔ کراچی والے ہوشیار، خبردار، شہر میں آج سے پھر ہیٹ ویو متوقع۔ سمندری ہوائیں بند رہنے، 21 مئی تک پارہ 41 درجے تک پہنچنے کی پیش گوئی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت، اسپتالوں میں ہنگامی انتظامات۔ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے، وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ لنڈن نہ جائیے گا، ادھر ہی رہیے گا۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم پورا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، عوامی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو۔ شہباز شریف کو ملنے والی کک بیکس کی ٹریل موجود، سوال وہیں کے وہیں۔ اپوزیشن لیڈر جواب دیں ورنہ ریفرنس دائر ہونے والا ہے، عید کے بعد وہاں جواب دینا پڑیں گے۔ شہزاد اکبر کی ایک اور پریس کانفرنس، نون لیگی صدر بتائیں مسرور انور، شعیب قمر اور فضل داد عباسی کون ہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب کا نیب سے روزانہ سماعت کرنے، شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے، اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ۔ شہباز شریف اجلاس بلا کر خود نہیں آئے، توقع تھی پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی، رہنمائی ملے گی۔ اپوزیشن نے اسمبلی میں وہی کہا جو پریس کانفرنسز میں کہتے تھے، یا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ شبلی فراز کا سوال۔ شہباز شریف صاحب کے جو بھی اثاثے ہیں، جو بھی لائبلٹیز ہیں، جو بھی انکم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پاکستانی قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ ہے، اور جو ڈکلیئرڈ ہے اس میں ایک کیٹل فارم ہے۔ پاکستان کا کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کیٹل فارم نہیں رکھ سکتے؟ بلندے صرف میڈیا ٹرائل، کاغذ نہ لہرائیں، عدالت جائیں، نون لیگ کا چیلنج۔ شہباز شریف کے اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ، شہزاد اکبر اپنی فکر کریں۔ ملک احمد خان، عطا تارڑ، عظمہ بخاری اور دیگر لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ شہزاد اکبر نے پھر الزامات کی سرکس لگائی، ثبوت نہیں لائے۔ معاون خصوصی برائے احتساب 2 سال پہاڑ کھودتے رہے،
मगर चूहा ही निकला। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। ईद के बाद नैब का झाड़ू फेरेगा। शेख रशीद की अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से गिरफ्तारियों की पेशगोई। शहबाज शरीफ को सॉफ्टवेयर बदलने का मशवरा। लॉकडाउन नून लीगी सदर के लिए लॉकअप प्रोग्राम करार। नैब किसी दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर काम है। पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना मकसद। करप्शन के खात्मे को कौमी खिदमत समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन जावेद इकबाल पुरस्कार। कोरोना मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। अब तक 834 अमवात। मुल्क भर में 38,799 शहरी मुतासिर। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678 और बलूचिस्तान में 2,457 केसेस। सिंध के ताजिरों का मुकदमा वजीर आजम के सामने रखने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में रेस्टोरेंट्स खोलने का मुतालबा। इमरान खान फौरी वक्त दें, ऐसा ना हो कि मजदूरों और ताजिरों का सब्र जवाब दे जाए। एमक्यूएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची से रॉ स्लीपर सेल का एक और अहम रुकन गिरफ्तार। एएसआई मुसव्विर नकवी टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस। कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। मुलजिम 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। एफआईए हुकाम। इंतजामिया के छापे, फ्लावर मिल्स बंद करने की धमकी। हमारे स्टॉक से जबरदस्ती गंदम उठाई जा रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का इल्जाम, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। पहले भी ताउन किया, अब भी दरवाजे खोलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान का रद्द-ए-अमल। टिड्डी दल पंजाब भी पहुंच गया। खानेवाल, मियां चन्नू, कबीरवाला, उच्च शरीफ, अहमदपुर सियाल में फसलों पर हमला। कई देहात लपेट में आ गए। किसान परेशान। हुकूमती इक़दामात का इंतजार। कोरोना से अमेरिका में आज भी 500 से जायद हलाकतें। बरतानिया में 468, ब्राजील में 229, इटली में 153 और रूस में 119 अफराद जान से चले गए। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सच्चार। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर दें आपको कि वजीर आजम ऑफिस के 4 स्टाफ मेंबर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले स्टाफ को करंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आजम हाउस के तमाम स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए गए। वजीर आजम हाउस में तमाम SOPs और एहतियाती तदाबीर को मुसलसल यकीनी बनाया जा रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल का ये बताना है कि तमाम अहम दफातर के स्टाफ का रेगुलर चेकअप किया जाता है। चंद मुलाजिमीन का टेस्ट मुस्बत आया, उन्हें पहले ही करंटीना मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना से मुतासरा मुलाजिमीन बराह रास्त किसी अहम शख्सियत के साथ मुंसलिक नहीं थे। वज़ीर आज़म हाउस में तमाम SOPs और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस के तमाम स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए गए हैं और जिनके टेस्ट मुस्बत आए हैं उनको करंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। वायरस वजीर आजम हाउस तक पहुंच गया। 4 मुलाजिमीन में मोहलिक वायरस की तस्दीक। एहतियाती तदाबीर में इजाफा। वजीर आजम हाउस में वाक़े PM ऑफिस में मामूल के कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान वजीर आजम ऑफिस में ही काम करने वाले 4 स्टाफ मेंबरान का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मुतासिर अफराद को करंटीना कर दिया गया। वजीर आजम हाउस में एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी गई। SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिया गया। वजीर आजम हाउस में दूसरी दफा कोरोना टेस्ट किए गए थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुस्बत आने वाले मुलाजिमीन में से कोई भी बराह रास्त किसी भी अहम शख्सियत के साथ मुंसलिक नहीं था। ये मामूल की सरगर्मी है जिसमें वजीर आजम ऑफिस और तमाम दूसरे अहम दफातर के स्टाफ का रेगुलर चेकअप किया जाता है। और वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की मौजें करा दी। ईद उल फितर की तवील छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
मुलाजिमीन के मजे, ईद पर लंबी छुट्टियां, मीठी खुशियों के साथ होगा खूब आराम। वफाकी वज़ारत दाखिला ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए ईद की तवील छुट्टियों का फरमान जारी कर दिया। 6 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी महकमे 22 से 27 मई तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने भी अपने मुलाजिमीन के लिए छप्पड़ फाड़ कर छुट्टियां देने का फैसला कर लिया। बुज़दार सरकार 23 से 31 मई तक 9 छुट्टियों की मंजूरी देगी। तातीलात के दौरान पार्क्स और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की तजवीज़ है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शवाल का चांद 29 रमजान को नजर आने के इम्कानात कम है। चांद 22 मई 10:40 पर पैदा होगा और 24 मई को देखा जा सकेगा, जिसके 22 ईद उल फित्र 25 मई पीर को मुतवक्के है। रुईत हिलाल कमेटी का इजलास 23 मई को होगा। उधर पंजाब ने पीर से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स भी सोमवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार करेंगे। मसीही बिरादरी आज चर्च में इबादत कर सकेगी। असलम इकबाल ये कहते हैं कि SOPs को हतमी शक्ल देकर बाजारों के टाइम में तब्दीली की जाएगी। पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन में मजीद नरमी के हवाले से अहम फैसले। वज़ीर आला ने इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने के साथ किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन टैक्सी व ट्रांसपोर्ट सर्विस भी खोलने का फैसला। वज़ीर आला ने हिदायत की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इजलास में बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी SOPs के तहत खोलने का फैसला किया गया। पावर लूम्स को भी काम की इजाजत देने की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने बताया कि पीर से ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। पीर वाले दिन से ट्रांसपोर्ट को पूरे पंजाब के अंदर जो है उसकी इजाज़त दी जा रही है और इसके साथ साथ जो एक बात की गई थी कि 20% किरायों में कमी के साथ वो फैसला इम्प्लीमेंट करने हम जा रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की भी इजाज़त दी जा रही है। SOPs के तहत गिरजाघरों में इतवार को इबादत की इजाज़त होगी। इसी ऐलान पर चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन असमतुल्लाह नियाज़ी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद होगा। साथ साथ ये भी बताया कि AC बस के किरायों में 20 और नॉन AC के किरायों में 15% कमी कर दी गई है। सोमवार के दिन से इंशाअल्लाह हम गाड़ियां चलाएंगे। जहां तक SOPs की बात है वो ये है कि SOPs जितने भी हैं, प्रिकॉशंस हैं, ये हमने हुकूमत की फेवर नहीं करनी, हमने अपनी फेवर करनी। इसमें 15% जो है वो नॉन AC के लिए और 20% जो है वो AC के लिए। ये किराए जो हमने कम किए हैं 2018 में जो फ्यूल की प्राइसेस थी ये उस पे हमारा, उसके बाद ₹127 हुआ तो हमने किराया बढ़ाया कभी नहीं है। आज तक जो भी किराए हमारे चल रहे हैं ये 2018 के। फिर भी हमने जो है हुकूमत का साथ देने के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर भी हम चाहते हैं कि अवाम तक जो सहूलत पहुँचे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.